Uh, hi, Mr. Pawan. Hi, Namira. Hi, Nancy. Hi, Damini. Priya. Everyone. Hello, Hello, sir. sir. Priya, can you give me the Hello, access? sir. Hi. Yes, sir. Sure. नैन्सी जी आप लैपटॉप से ज्वाइन कर पाइएगा. यस सर, मैं ज्वाइन करती हूँ लैपटॉप. Take your time and do it. Okay. ठीक है. Pawan, can I see you? Am I audible, Pawan? Yes, sir. Can I see you? Actually, sir, I'm not well. I already informed किया मैम. क्या हुआ आपको? सर एक्चुअली सुबह से फीवर आ रहा था. कैसे आ रहा है? ये तो पता नहीं सर कैसे आ रहा है. So you'll not be able to turn on the camera. Yes, sir. ठीक है. So कोशिश करना कि हो जाए. So because this session is going to be recorded. Okay. So जी anyhow, सर. hi, Priya madam, can you give me the access of this? Done, sir. 1 second, let me check. Yeah, 1 second. Okay, hi. So, can we have a small introduction starting from Namira to everyone? थोड़ा सा introduction कर ले, एक दूसरे के बारे में जान ले. Okay. Hello everyone, good morning. My name is Namira Rizwan and I live in Patna. I have done my MBA from LN Mishra University and I have 8 months of experience in business development manager in my previous company, and my hobbies is listening song, cooking. That's all about myself. Thank you. Wonderful. Uh, Great. Can I have something more about Pawan? Yes, sir. Yeah, hello everyone. My name is Pawan Kumar Agrawal. I'm from Jaipur, Rajasthan. I have completed my graduation Bachelor of Arts from Rajasthan University. And about my experience, I've worked in Vikal Processing Private Limited in India Mass Process as process associate for 1 year, 6 months. Then Just Dial Limited as telemarketing executive, then promoted as a senior telemarketing executive in sales and worked there for 3 years and 9 months. Then I did Girnar Care and worked there for 2 years as a sales and support executive. And about my hobbies, I like gardening and playing PC game. Okay, great. Uh, uh, कल्पना, आप अपने बारे में कुछ बताओगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पना कुमारी गिरी है। मैं नोएडा से हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ ओसीपी एकेडमी से। एंड ऑलरेडी मैं इंटर्नशिप में काम कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू। नैन्सी, आप? Yes sir, good morning. Good morning sir, and good morning everybody. My name is Nancy Jain. I have completed my diploma at OCP Academy, and I am running my internship at OCP Academy under the Mr. Pranjal Singh sir. And I have completed my BTech and MTech at Bhopal, uh, RGPV College, and actually in my past I have 8 year experience in the teaching. I had a assistant lecturer at Sardar Vallabhbhai Polytechnic College, and now I am completed my digital marketing diploma. Thank you. Great, thank you. Nandini ji, आप? Nandrani. Uh, yeah, good morning, everyone. My name is Nandrani Guraya. I am from Hoshiarpur, Punjab. Currently, I had completed my digital marketing course from OCP Academy. I had also done my graduation from LPU recently. And for the time, I just joined as a computer teacher, a school. So that's all. Okay, hi everyone. So
my name is Pranjal, and I am going to take your sessions into training and development. और मैं आपको इंटायर चीज़ों में बहुत सारा हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, और बहुत सारी चीज़ों पर हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ प्रिया हैं, और इनसे आप मिल चुके होंगे। दामिनी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह हैं, और वी विल बी communicating with them slowly as per requirement. So Pawan, Nancy, Kalpana, and this Namira, क्या लगता है ओसीपी एकेडमी के बारे में? अभी तक नमीरा, पवन, आप क्या जानते हो? ओसीपी एकेडमी डिजिटल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग के। 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक ऑफिस हमारा मुंबई में है, एक पटना में है। ऑनर मिस्टर प्रांजल सिंह, जो आप है। डिजिटल मार्केटिंग के हम 5 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारी यूएसपीज है, कोर वैल्यूज है और 16 मॉड्यूल्स। नमीरा, आपने पढ़ा जो भेजा मैंने? हाँ, यस सर। बताइए। सर, ओसीपी एकेडमी डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट कोर्स को हम लोग को ये करवाता है, जिससे हम लोग को फ्यूचर में हेल्प कर टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो एजुकेशन गैप है, उस दिन में आपने बताया था, उसको फुलफ़िल करता है कि आज की इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी स्किल्स चाहिए वो डेवलप करने में हेल्प करता है। इसमें इसका यूएसपी है कि सबसे पहले उसमें ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप प्रोग्राम से पेड इंटर्नशिप है, जिसमें आपको अच्छी अच्छी एमएनसीज वगैरह से इंटर्नशिप करवाया जाएगा। 29 कंपनीज टाई अप है, जिसमें प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगा। जो लोग को अभी गैप आ रहा है, जो लोग एक्सपीरियंस लेके थोड़ा गैप आ जाता है एक्सपीरियंस में, वो लोग को हेल्प मिलती है थ्रू ओसीपी एकेडमी। थैंक यू। हम अपना एक ट्रेनिंग सेशन करेंगे। ये ट्रेनिंग सेशन बहुत जो आपको मेल किया होगा उसी हिसाब से होगा। अब आपके ऊपर है कि आप ट्रेनिंग सेशन को कितना जल्दी करते हो, कंप्लीट करते हो और क्लियरेंस लेते हो आगे बढ़ने के लिए। नाउ, आप लोग सेल्स के लिए आए हो, एंड हाउ द सेल्स इज बीन डन। हमारा जो मोटिव होगा इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग में, सबसे बड़ा मोटिव होगा मार्केटिंग को समझना, स्ट्रैटेजी को समझना, सेल्स को समझना, और ये सारी चीजों को हमें करना, ठीक से करके देखना, समझना और ग्रो करना। ये सबसे बड़ा चीज होना चाहिए। हम आज से अगर अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आगे चल करके भी तैयार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, हम लोगों को और भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ऑफिस के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को आपको मैनेज करना है। तो ये सब चीज जो है ये एक तरीके से ही मैनेज होगा, विच इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छे तरीके से ये एक यूएसपी हमारा निकल जाए। क्या हो सकता है, कैसे होगा, ये किस तरीके से चलेगा। सो I'm there to guide you in all the process। टाइम को आपको मैनेज करना है और आपको अपना एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स बनाना है। हम किसी भी एक नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो कुछ दिन एक इंथुजियास्टिक रहता है, फिर धीरे धीरे हम उसमें बहुत ही डल हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं है। अभी कभी ऐसा लगे, टेक अ ब्रेक, घूम करके आओ, कहीं मिल करके आओ, दोस्त से मिलो। कभी भी ऐसा लगे तो 3 साल 4 साल पुराने दोस्त को अचानक से फोन मिलाओ और उनको फोन करके बात करो। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आप कितना देर क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, और अपना सब चीज को शेड्यूल करना पड़ेगा। जब आपका कोई टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा और एक दूसरे से कोई भी चीज क्लैश होगा, तो आपको स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगा, गुस्सा आएगा और बहुत सारा चीज आएगा, जिसके कारण रिजल्ट ये होगा कि आप बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वे में काम नहीं कर पाओगे और वो स्टक हो जाएगा। वेल, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज मैं आपको ओसीपी एकेडमी के बारे में बताता हूँ। ओसीपी एकेडमी है क्या, कैसे हुआ। 2010 में ये एकेडमी शुरू हुई थी। 10 अगस्त 2000 दिस एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड।
हम ऑफलाइन में बहुत सारे कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हैं, थे भी, और बहुत सारे कॉलेजेस को के पास हम ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते थे। शुरुआत में हम एनसीईआरटी और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज थे जो एनसीईआरटी के बुक्स हो गए उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, स्कूल्स को देना। स्कूल्स के बाद हमने फिर इसको कोर्स में किया। बीएड के कोर्सेज भी हमने रन करने की बहुत सारा कोशिश किया कि बीएड भी हम करेंगे। तो उसके बाद करते करते वी हैव फाइनलाइज इट। और अब मेरा मैं देख पा रहा हूँ कोई भी कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है। फर्स्ट एटिकेट इज दिस, जब हम कहीं पे बैठे बात करें वी हैव टू टर्न ऑन द कैमरा। पवन को हम एग्जाम्शन दे सकते हैं, बाकी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, सर सो ये ऑन नहीं हो रहा है, क्या नहीं ऑन हो रहा? जूम ऑन ऑन नहीं हो रहा, दिखा रहा है यू कांट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट कुछ, हाँ स्टार्ट माय वीडियो, यस थैंक यू। ठीक है नमीरा, सर मेरा अभी भी नहीं हो रहा है ऑन। आप आप एक्सेप्ट करिएगा, रिक्वेस्ट भेजा है आपको, देखो मिला नैन्सी? नमीरा आपका? एम आई ऑडिबल? नमीरा आवाज आ रही है आपको मेरी? मैंने वो कर दिया है सबके लिए ऑन स्क्रीन शेयर। हाय, ठीक है। सो नंदरानी जी, आप कैमरा कहीं रख सकती है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, नमीरा प्लीज टर्न ऑन द कैमरा क्विकली, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सुनते रहिएगा। सो हम लोगों को सबसे ज्यादा चीज यहाँ पे ये समझना है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। तो ओसीपी एकेडमी की जर्नी ऐसी रही, फिर इसने धीरे धीरे ये सारी चीजों को स्टार्ट किया गया, और स्टार्ट करने के बाद हम कुछ कोर्सेज में आए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करते करते कहीं पर भी ओसीपी एकेडमी का नाम नहीं होता था, क्योंकि हम एक बैकएंड सोर्स थे। हम बहुत पीछे से काम करते थे, फ्रंट में जो लोग काम करता है उसी का नाम होता था। हम कुछ भी नहीं, मेरा हमारा कोई भी चीज नहीं था। 2019 के आसपास हम लोगों ने ये सोचा कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस, और हम इस तरीके से काम करेंगे। तो 2019 से हम लोगों ने ऑनलाइन आना शुरू किया। ऑनलाइन आते आते ये प्लेटफॉर्म बना, जहां पर हम अभी फोकस डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एनालिटिक्स, डेटा साइंस, सॉरी, सॉफ्ट स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरीके के कोर्सेज पर ज्यादा फोकस किए, और इस तरीके के कोर्सेज को ही ज्यादा हम आइडियल चीजें देते हैं। नाउ हम लोगों ने इस तरीके के कोर्सेज को किया, प्लस डिजिटल मार्केटिंग के साथ हमने बहुत सारे कोर्सेज को मर्ज कर दिया। नमीरा, एम आई ऑडिबल बाय एनी चांस? पवन, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are Yes, audible. sir. Yes, sir. टर्न ऑन द कैमरा नमीरा। It's on नहीं, from इट्स my. नॉट ऑन, it's not showing on. See, I have Is given you request, you accepted. yeah, accepted. It's not on. You आप वापस जाओ और फिर से ज्वाइन करो। Okay. ठीक है। सो हम लोगों ने इसी तरीके से ये सारा चीज का काम शुरू किया, और अभी डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कोर्सेज हैं जिसपे हम ये सारे कोर्सेज को चलाते हैं और कोर्सेज को देते हैं। अब ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत सेगमेंट के कोर्सेज हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स भी है। सो ये सब चीजें आप लिख लीजिए, लेट नमीरा ज्वाइन, सो दैट कि हम इस चीज को कहते हैं।
दामिनी मैम प्लीज पता करिए नमिता ज्वाइन कर रही हैं। ओके, ठीक है। सो we are having 4 types of a courses, 5 types of a courses. So OCP Academy के बारे में आपको बताया। अब ये कोर्सेज है, आप लोगों को कोर्सेज के बारे में सबको पता होगा, डिटेल्स आप लोगों को जा चुका है। फर्स्ट कोर्स इज कॉल्ड सर्टिफिकेट कोर्स, विच इज सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्स, which is a basically digital marketing certificate course. It is exactly a digital marketing certificate course. सेकेंड कोर्स इज कॉल्ड स्किल बेस्ड कोर्स। दूसरा कोर्स को हम कहते हैं स्किल बेस्ड कोर्स। इफ यू आर लिसनिंग प्लीज राइट ऑल दीज थिंग्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट कोर्स को हम कहते हैं सर्टिफिकेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो आपके पास डिटेल्स जा चुका है। सेकेंड कोर्स जो है विच इज कॉल्ड स्किल कोर्स। सो फर्स्ट कोर्स और सेकेंड कोर्स में अगर आपसे कोई अंतर पूछेगा कि क्या अंतर है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या बेस्ट मतलब चीजें हैं जो आप मुझे बताना चाहोगे, तो मैं आपको बता देता हूं। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये पहला कोर्स का नाम है। इसमें क्या होता है, अंतर क्या है और किस तरीके से होता है? ये कोर्स 3 महीने का है और इसमें हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जनरली ये कोर्स कोई कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए ये हो सकता है, या ये उसके लिए हो सकता है जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानना है, बस ठीक है थोड़ा समझ लिया, दैट्स इट, एक सर्टिफिकेशंस कर लिया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज 15,999, 15,999 इसका कॉस्ट है। दूसरा कोर्स है विच इज कॉल्ड स्किल बेस्ड कोर्स, इसको हम कहते हैं स्किल बेस्ड कोर्स। यहां पर हम स्किल्स सिखाते हैं। सर्टिफिकेट में हम सर्टिफिकेट देते हैं, यहां पर सर्टिफिकेट्स के साथ स्किल्स सिखाते हैं, मतलब हाथ पकड़ करके सारी चीजें कराते हैं। द नेम ऑफ द कोर्स इज डिजिटल मार्केटिंग इंटीग्रेटेड सिमुलेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इज इट ओके? ठीक है। तीसरा चीज क्या है, इसमें क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग इंटीग्रेटेड सिमुलेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 4.5 महीने का कोर्स है और फीस इसका 35,999 है। इस कोर्स में हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स एक्सेस आपको देते हैं लिमिटेड, प्लस सिमुलेटर्स भी देते हैं। सिमुलेटर्स क्या है, किस तरीके से, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड टू एक्सेस है, स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, इसको करने के बाद स्किल्स बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। तीसरा प्रोग्राम है डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट प्रोग्राम, इसको हम एसोसिएट या एडवांस्ड कोर्स के नाम से भी हम कह सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 6 months, 6 महीने का कोर्स का ड्यूरेशन है। व्हाट इज द एडवांसमेंट नीड ऑफ दिस कोर्स? इसका नीड ये है कि ये एडवांस कोर्स है, एडवांसमेंट में चीजें सिखाई जाती है, मतलब ये बेसिक लेवल से चीज नहीं सिखाया जाएगा। जो पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं, कर रखे हैं, जानते हैं, उसके लिए ये फेयर इनफ अच्छा कोर्स है, उनको ये बहुत अच्छे से सिखा सकता है और बहुत अच्छे से इनको आगे पुश कर सकता है। So advanced digital marketing associate program is being considered as a advanced course और associate course, जो पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रखे हैं उनके लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, राइट। इसके बाद आता है डिप्लोमा कोर्स विच इज ऑफ 9 months, 6 to 9 months प्रोग्राम। 6 to 9 months इसलिए हम रखते हैं कि कुछ लोग 6 months में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स विद सिमुलेशन एआई प्रोग्राम। आप लोगों के पास होगा, इस कोर्स का नाम है डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स विद सिमुलेशन एआई प्रोग्राम। बहुत कुछ है इस कोर्स में, अवार्ड विनिंग कोर्स है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं इस अकेला प्रोग्राम को। क्या क्या है? पहला, हम इस कोर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स पढ़ाते हैं, एडवांस इंटरमीडिएट पढ़ाते हैं,
एडवांस पढ़ाते हैं और हायर पढ़ाते हैं, चारों लेवल्स को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं। अब ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है, वो भी हम आगे बताएंगे। इसमें हम इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ग्रोथ मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाते हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं, विच इज कॉल्ड AR, VR, MR, XR। और AR stands for augmented reality, VR stands for virtual reality, MR stands for mixed reality, and XR stands for extreme reality। प्रिया मैम, बाय एनी चांस इसका AI कैंपेनियन मोड ऑन था? नो सर, वो मैंने नहीं किया था। मैंने कर अभी दूं? मैंने अभी कर दिया है, ठीक है। मैं अभी कर दिया और मैं फिर चीजें को पढ़ाता हूं, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू से फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरू से फिर से बताते हैं, ठीक है। ओसीपी एकेडमी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओसीपी एकेडमी में ओसीपी एकेडमी की जो पेरेंट कंपनी है विच इज कॉल्ड ओसीपी फाउंडेशन, उसका यूनिट है ओसीपी एकेडमी। ओसीपी एकेडमी में हम बहुत सारे कोर्सेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, इन सबको। और इन सबको हम कंबाइन करके पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा। ओसीपी एकेडमी में 5 टाइप्स के कोर्सेज हैं। मीनवाइल प्रिया मैडम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो पवन और नमीरा है इनको आप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, सो दैट आई विल बी कीप शेयरिंग द डिटेल्स। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब 5 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स कौन सा है, कोई रिपीट करेगा मेरे साथ? नमीरा। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। सेकंड कोर्स पवन? Digital Marketing Integrated Simulation and Certification Program, skill based program. करेक्ट, स्किल बेस्ड प्रोग्राम। सो पहला जो प्रोग्राम है सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम विच इज कॉल्ड CDMPP। सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा, 3 मंथ्स का है। बेसिक कोर्स होता है, बेसिक हम नहीं कहते हैं इसको, हम यहाँ पर कभी भी बेसिक इंटरमीडिएट का टर्म का यूज नहीं करेंगे। तो ये कोर्स किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है, और ऐसे लोग के लिए जो नहीं कुछ जानते डिजिटल मार्केटिंग में और वो एक ट्रांजिशन ले रहे हैं अपने आप को कुछ सीखने के लिए और बहुत पैसा नहीं लगाना चाहते। तो जिनको कुछ नहीं पता है वो यहाँ से कुछ समझ सकते हैं। दूसरा कौन सा कोर्स है? विच इज कॉल्ड स्किल बेस्ड कोर्स, जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, साथ ही साथ स्किल्स भी बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ स्किल्स, जो हम स्किल्स आपको बहुत सारी चीजों का सिखाते हैं और बहुत सारी चीजों का स्किल्स सिखा करके समझाते भी हैं, ठीक है। तीसरा कोर्स कौन सा है? विच इज कॉल्ड एसोसिएट प्रोग्राम। डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट प्रोग्राम क्या है? बेसिकली एडवांस कोर्स होता है, बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता है। उन लोगों के लिए जो पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रखे हैं और उनको फिर से ये कोर्स करना है और एडवांस होना है, उनके लिए ये कोर्सेज है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर कोर्स उनके लिए मिलेगा। तीसरा चौथा क्या है? व्हाट इज द फोर्थ नंबर कोर्स? फोर्थ इज कॉल्ड डिप्लोमा कोर्स, जो हम कहते हैं 6 to 9 months का ड्यूरेशन है, विच इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स विद सिमुलेशन AI प्रोग्राम। इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, आपको बहुत सारे कोर्सेज इसमें मिलते हैं, बहुत सारे। सो डिजिटल मार्केटिंग आपको मिलता है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग के चारों लेवल्स मिलते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और हायर। दूसरा क्या होता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मिलता है। तीसरा क्या होता है? द थर्ड वन इज कॉल्ड ग्रोथ मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद अब ये होता क्या है? पहले ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल सारी चीजों को कंबाइन करके बनता है। डिजिटल में सब कुछ आता है, बट वी आर फोकस ऑन रैंकिंग, गूगल रैंक हो गया या इस तरीके की जो भी चीजें हो गई वो हम डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा पढ़ाते हैं।
परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम स्पेशलाइजेशन सिर्फ एड्स में करते हैं, किसी को सिर्फ एड में ही रहना है, एड ही चलाना है, सिर्फ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, यही सब चीजों पर ज्यादा फोकस करना है सीखने के लिए, तो हम उसको भी उसमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। थर्ड थिंग क्या है इसके अलावा? ग्रोथ मार्केटिंग। ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केटिंग की जरूरत होती है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ठीक है, डिजिटल भी अच्छा है, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो ग्रोथ मार्केटिंग भी हम इसमें पढ़ाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो भी इन्फ्लुएंसर देखते हैं, चाहे वो वीडियो ब्लॉग्स के हो, राइटिंग के हो, या कुछ के भी हो, वो कैसे आप बनेंगे उसके ऊपर भी हम इस चीज में पढ़ाते हैं। प्रिया मैडम, सब लोग ऐड हो गए ग्रुप में? प्रिया मैडम, एम आई ऑडिबल? सारे लोग ग्रुप में ऐड हो गए? ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ता है? ये सारी चीजों के इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोडिंग्स वगैरह को हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नॉन टेक्निकल भी लोग कर सकते हैं इसमें, और साथ ही साथ हम इसमें मार्केटिंग एआई के थ्रू आप कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करेंगे, जब आप वहां पे नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस किस तरीके से चलेगा, दीज ऑल थिंग्स वी यूज टू टीच, राइट। इसके बाद इसके बाद क्या होता है? अनदर थिंग इज दिस, इसके बाद होता है कि वी यूज टू टीच इमर्सिव टेक्नोलॉजी। ना, इमर्सिव टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें हम कुछ स्पेशलाइजेशंस पढ़ाते हैं, विच इज कॉल्ड AR, VR, MR, XR। AR का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, MR का होता है मिक्स्ड रियलिटी, और XR का होता है एक्सट्रीम रियलिटी। ये चार चीज क्या है आपको भी समझना बहुत जरूरी है। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि किसी भी रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज के आ जाने को हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते होगे, बहुत सारी चीजें यूज करते होगे, इन सब चीजों पर आप फिल्टर्स लगाते होगे, या अपने फेस के ऊपर फ्लावर्स लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। सो एक्चुअली इन सब के ऊपर जब ये सारी चीजें हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी का मतलब आपने एक गॉगल्स पहना, चश्मा पहना, और आप वर्चुअली कहीं और पहुंच गए, वर्चुअली कहीं और चले गए, वर्चुअली किसी और जगह दुनिया में पहुंच गए। फिजिकली यही हो, लेकिन माइंड से आप कहीं और हो गए, विच इज कॉल्ड VR, वर्चुअल रियलिटी। MR क्या होता है? AR और XR का मिक्स होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स को आप जॉयस्टिक पर खेलते भी हो, लेकिन आप वीडियो में उसको देखते भी हो कि फाइट कैसे करना, आप ऐसे पंच करोगे तो सामने पंच करेगा, ऐसे हिलोगे तो वो सामने हिलेगा। NXR इज अ एक्सट्रीम रियलिटी। ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, अलग वे है, जहां पर आप सेंस को स्मेल कर सकते हो, मतलब मोबाइल फोन पर आप स्मेल कर सकते हो मोबाइल फोन से, या टच कर सकते हो, इस तरीके से एक्सट्रीम रियलिटी में होता है। सो ये भी हम इस डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाते हैं। नमीरा, प्लीज एक्सेप्ट द इनवाइट विच प्रिया हैज सेंडेड यू ऑन व्हाट्सएप। इसके बाद जो है हम और क्या पढ़ाते हैं? वी आर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्विकली ऑन दिस। हम यहाँ पर पढ़ाते हैं और सारी चीजों में कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्यों जरूरत है? बहुत सारा चीज में जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे होते हैं, आपका तरीका कैसा है, किसी को समझने का तरीका कैसा है, किसी को नहीं समझने का तरीका कैसा है। दूसरा क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। आप सॉफ्ट पोलाइट कैसे होते हैं, आपकी मैनेजमेंट किस तरीके से आप समझते हो, और ये सारी चीजें। फिर हम पढ़ाते हैं फॉरेन लैंग्वेज में 6 सब्जेक्ट है, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, स्पेनिश, पोर्तुगीज। कोई भी एक लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। जनरली लोग फ्रेंच इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडिंग है इंग्लिश से ज्यादा, यहाँ पर फ्रेंच। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली टीच। ये सारे चीजें इस कोर्स में पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें कोर्स में बताया जाता है,
और ये सारी चीजें कोर्स में होती है। इज इट क्लियर? अब आता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोग्राम। ये है 9 to 11 मंथ्स का, और ये प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के कैटेगरी में आता है। कौन से लोग ये प्रोग्राम करते हैं? जिनके पास पैसा होता है, और वो ज्यादा लोग करते हैं जो चीजें को हाई लेवल पर देखते हैं, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं, या जॉब में बहुत अच्छा प्रमोशन पाना चाहते हैं। कोई मैनेजर है, उसको सीईओ बनना है, ब्रांड हेड बनना है, या वीपी बनना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। जो जो डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है वो इसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें जो पढ़ाया जाता है वो स्ट्रैटेजी बनाना पढ़ाया जाता है, कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो, किसी भी बिजनेस का आप स्ट्रैटेजाइज कैसे करोगे, एनालिटिक्स कैसे, ये सारी चीजें करी जाती। प्लस इसमें भी और डिप्लोमा में भी दो सब्जेक्ट्स मेरे ध्यान से उतर गया, वो था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हर बिजनेस का एक गणित होता है, वो चीज बताया जाता है, और मार्केटिंग एनालिटिक्स, कि आपके इस कोर्स में मार्केटिंग एनालिटिक्स का कितना बड़ा योगदान है। मतलब आपके यहाँ मेल कितने आ रहे हैं, फीमेल कितने आ रहे हैं, किस एज रेंज के आ रहे हैं, कौन से क्या लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में। सो पीजी डिप्लोमा इज मोर ट्रिकी, मोर प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी कोर्स है। हमारे जो कोर्सेज होते हैं, हम जो एफिलिएटेड हैं, वो वॉर्टन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया से हम एफिलिएटेड हैं। टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? सर ये जो एडवांस प्रोग्राम था डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट प्रोग्राम, इसका प्राइस? 45,000। तो पहला वाला का प्राइस जो है, विच इज कॉल्ड सर्टिफाइड का, 15,999। दूसरे वाले का जो प्राइस है उसका है 35,999। तीसरे वाले का जो प्राइस है उसका है 45,999। चौथे वाले जो डिप्लोमा है उसका प्राइस है 55,999, और जो पीजी डिप्लोमा है जिसका प्राइस है 80,999। क्लियर? So EMI is available on all the courses? Correct. EMIs are available, e-NACH facilities are available, and credit card options are also available. अब ये e-NACH, EMIs और ये होता क्या है उसके बारे में भी बता देते हैं। अगर कोई इंसान वन टाइम पेमेंट करना चाहता है डेबिट कार्ड या किसी से भी, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। देयर इज अ डिस्काउंट ऑल्सो, उनको डिस्काउंट मिलता है, फीस वेवर मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, और क्रेडिट पॉइंट्स भी आता है उनके क्रेडिट कार्ड में। जैसे मैंने अभी ये ऑफर्स टू ऑफर होता है, अभी ऑफर का एक एग्जांपल बताता हूँ। ये करंट ऑफर नहीं है, बट ये एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने 80,000 का कोर्स परचेस किया और मैंने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। नाउ मुझे कुछ पैसा डिस्काउंट मिल सकता है, डिपेंड ऑन दिस, प्लस कुछ पैसा मेरा कैशबैक आ जाएगा, और कुछ पैसा का मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। तो मान लो कि 10% मेरा कैशबैक आ गया और 10% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। अब कैशबैक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कहाँ यूज करोगे? बिल्स देने में, मोबाइल फोन्स को आप कोई भी परचेस करने, मतलब उससे कैश नहीं निकाल करके आप उससे कुछ भी यूज कर सकते हो, और एग्जैक्ट सेम अमाउंट का ही आएगा आपके पास। और अगर डिस्काउंट होगा तो वो एप्लीकेबल होगा। आपको डिस्काउंट ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि आप जब ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो आपके कमीशंस भी उसी तरीके से रिड्यूस होते रहेंगे। So try to negotiate on the actual size rather than going for the discounts, but we will figure it out, कोई मिडिल का रास्ता निकाले। नाउ पॉसिबिलिटीज कैसे है? आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो, आप कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, एनएफएस पेमेंट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, चेकबुक से जमा कर सकते हो, कैश ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो, पेमेंट गेटवे से सबमिट कर सकते हो, ई नैश के थ्रू सबमिट कर सकते हो, पे लेटर के थ्रू सबमिट कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अभी हमने लोन को सस्टेन नहीं कर रखे हैं बहुत ज्यादा। थोड़ा सा फाइनेंस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इंडिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। सो अभी बहुत सारा क्लटर्ड मिल रहा है, बहुत ही पैसा इधर उधर जा रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को ये कोर्स करना है
तो वो फाइनेंस करा लेते हैं। फाइनेंस कराने का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हम लोगों पर गिरता है। कैसे गिरता है वो समझाते हैं। अभी मैंने 1 लाख का कोर्स को फाइनेंस किया और 1 लाख का उसने 12 ईएमआई बना दिया फॉर एन एग्जाम्पल। तो 12 ईएमआई का जो एक साल में इंटरेस्ट रेट आएगा 14%, 16%, ये ओसीपी एकेडमी बियर करेगी। मतलब 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। Yes. 14% 14,000 तक हुआ ना। तो Yes. 14,000 इज गोइंग टू बियर बाय ओसीपी एकेडमी, प्लस प्रोसेसिंग चार्ज इज ऑल्सो गोइंग टू बियर बाय ओसीपी एकेडमी, और भी इसमें जीएसटी वगैरह। तो कुल मिलाकर के हमारा 15-20 हजार का हम कॉस्टिंग बियर करते हैं। अब इस बीच में अगर लड़का भाग जाए, पेमेंट नहीं करे, तो वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी आता है। अभी के हिसाब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए हम अभी ऑप्शंस नहीं देते हैं कि आप ईएमआई पर आइए। हम उसके अलावा ई नैश का ऑप्शन देते हैं। ई नैश क्या है? आपने ई नैश साइन करवा लिया, और ई नैश साइन कराने के बाद वहां पर क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली डेबिट होना शुरू हो गया पैसा। उस दिन उस तारीख अगर वो बंदा पैसा नहीं देगा तो उसको ही पेनाल्टी लगेगा। राइट? ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब ये सारा ई नैश का सिस्टम हो गया। अगर किसी को ईएमआई पे जाना है, देन आई वी वुड से कि आप क्रेडिट कार्ड पे चले जाइए। क्रेडिट कार्ड पे हमारे यहाँ ऑफर भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, और 36 ईएमआई मतलब 3 साल तक का ईएमआई हम बना सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा ऑफर्स भी मिल जाता है। आपके ऊपर है कि 13 साल तक का आप ईएमआई बना दीजिएगा। लोन्स के लिए, डायरेक्ट लोन्स के लिए आप अभी नहीं कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिविल स्कोर खराब होता है। हमें सिविल स्कोर 725 या 26 के ऊपर चाहिए आउट ऑफ 800। तो बहुत कम लोगों का इस रेंज में सिविल स्कोर्स होगा। अगर इस रेंज में नहीं होगा तो वो ऐसे भी डिक्लाइन हो जाएंगे। प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले किसी को पकड़ने का? आप सबसे पहला रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले लो किसी भी कोर्स में, और उसके बाद बोलो कि हमारा प्रोसेस आगे चलेगा। अब ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी के लिए बस इतने पर ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, उस पर हम फिर सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का प्रोसेस क्या आप लोगों को क्लियर था? यस सर। कोई क्वेश्चंस? सर, ये जो प्राइस है कोर्सेज के, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है? हाँ, हमारे यहाँ जीएसटी नहीं चार्ज होता है। वी नेवर चार्ज जीएसटी। प्रोसेसिंग अगर बैंक चार्ज करेगा तो जीएसटी लेगा। ओके। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे यहाँ कोई जीएसटी नहीं होता। आपको कभी भी किसी को बोलना भी होगा तो बोल देना इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इसमें सारे टैक्स इंक्लूडेड है। ओके। और पूछो। और सर, आपने को यूनिवर्सिटी का क्या नाम बताया था? वॉल्टन? वॉर्टन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया। ओके। ठीक है, वॉर्टन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया। सर्टिफिकेट्स जो है वो सारे कोर्सेज में, सारे कोर्सेज में है, और बहुत सारे कोर्सेज में सर्टिफिकेट्स आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अलग सर्टिफिकेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग है, एआर वीआर का अलग है, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज, सबका अलग है। प्लस इसके साथ साथ हम बहुत सारे अलग भी सर्टिफिकेशंस देते हैं, जैसे गूगल का, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का, मेटा का, हबस्पॉट का, हूटसूट्स का। एन नंबर ऑफ अलग सर्टिफिकेशंस भी है, जिसमें नैन्सी बहुत माहिर है, चली गई है अभी। तो वो सारी चीजें भी हम करते हैं। कहाँ गई नैन्सी? तो वो सारी चीजें, मतलब वी यूज्ड टू प्रोवाइड एन नंबर ऑफ, बहुत सारे सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। और सारे सर्टिफिकेशन एक्रीडेटेड होते हैं और आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं। ये पूरा का पूरा हम एजुकेशन मिनिस्ट्री से आईएसओ सर्टिफाइड है, सारी चीजें हैं। यहाँ से ही ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। अभी तक कितने एनरोलमेंट हुआ है डिजिटल? अभी तक मतलब क्या पूरे बिजनेस का? नहीं, कितने स्टूडेंट्स अभी कोर्सेज अवेल कर रहे हैं? 3-4 हजार के ऊपर होंगे स्टूडेंट्स, पास आउट हो चुके हैं।
और पूछो, और क्या पूछना है? ऑफलाइन हम लोग कब से प्रेजेंट है? 2010, 10 अगस्त 2010, 10 अगस्त 2010। और क्या पूछना है? ऑल क्लियर? या थैंक यू सो मच, विल मीट अनदर टाइम। पवन, आप ग्रुप में किस नंबर से एडेड हो? सर मेरा पर्सनल नंबर ऐड कर दिया, मेरा ऑफिशियल वाला कर दीजिए। ठीक है पवन, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है। मुझे ओके। आप व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हो एक बार? हाँ हाँ, रुको मैं चेक करता हूँ, आपको है मेरे पास? हाँ। पवन, भेज दिया सर मैंने। मैं आपको इस नंबर पे भेजा हूँ, ये नंबर से आप ज्वाइन कर लीजिए, पुराने से आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है। और पवन, आप, नंदरानी जी, आप किस नंबर से एडेड हैं? आप अपने ऑफिस के नंबर से एडेड हैं या किसी और नंबर से एडेड हैं? नहीं सर, मेरा जो पहले ओसीपी में नंबर चल रहा है अभी उसी से एडिड हूँ। हाँ। तो हाँ जी, जो नया नंबर ऑफिशियल नंबर है उसको मैं आज जाके व्हाट्सएप बिजनेस पे कन्वर्ट करके फिर मैं उसमें ऐड करूंगी सेम अपना। सेम सेम मतलब सेम नंबर है या दूसरा नंबर से ऐड होगा? अ, वो दूसरे नंबर से होगा सर। ठीक है, तो मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उस नंबर से होकर के इसको एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है जी सर। गाइस, वी रिक्वेस्ट एवरीवन, दोज हु आर देयर, जो भी आप अपने ऑफिस के नंबर यूज कर रहे हो, आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, हम आगे चल करके सिखाएंगे, चीजें पे बात करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। मीनवाइल प्लीज गो थ्रू इट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी कैन कनेक्ट। प्रिया मैम, आर यू देयर? Yes, ठीक है, ओवर टू यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू थैंक यू प्रिया सर। मैम, थैंक यू। ठीक है। तो इसी लिंक पे ही हम ज्वाइन कर लेंगे, नेक्स्ट जो भी है टाइमिंग। एट 2 PM। इसी लिंक। ओके, बाय। कितने बजे करना है मैम? बाय मैम। दो दो 2 PM। ठीक तब है तक सर। आप अपना थोड़ा जो भी होमवर्क अगर सर ने दिया है और सारी चीजें एक बार कोर्स के रिगार्डिंग पढ़ लो। ओके, ओके। ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन।